obviously, the wicket was slightly tricky. It was slightly two pace, as you saw. All 40 overs for batsmen, it was slightly more challenging. But again, the advantage what I had where we bowled first and we did assess the condition in a way where you can't simply line up on this wicket. You have to play cricketing shot. That's what, when I went, obviously I was under pressure. We lost 3 quick wickets. But my plan was pretty simple, that I knew that if I take it to... If I build an innings from here on, and if I put under a good situation, we'll be able to get the result what we wanted. So yeah, obviously there were a lot of ups and downs. As I told you, it was not an easy wicket to bat on, but glad that we were able to get those 2 crucial points for us. Yes, obviously, I mean, as a team, we have discussed that, if you fancy one bowler that you feel like you can take down, right, just play 6 balls. And as a batting unit, we all have discussed that. So in that situation, I was set, I was in. And obviously, I realized at that time, for me, it was very difficult to run as well, like 1s and 2s. And I felt like, okay, let me just stand and let me just face all 6 balls and let me capitalize whatever I can. And obviously, glad that I was able to get those 2 sixes. But so that was the plan basically. 100% ऑब्वियसली दिनेश कार्तिक को बहुत क्रेडिट जाता है जिस तरीके से आरसीबी पिछले 2 साल से एज अ बैटिंग यूनिट हम लोग ने जैसा परफॉर्मेंस किया है कंसिस्टेंटली. अगर आप देखो लास्ट ईयर भी जिस तरीके से एंटायर बैटिंग यूनिट ने जैसा परफॉर्मेंस किया, इस साल भी अगर देखो, ऑब्वियसली वी हैव हैड अवर अप्स एंड डाउन्स, बट as a batting unit, I mean, a lot of credit goes to DK. He has spent a lot of individual time with each player and उनका क्या strength है, क्या weaknesses है, उस पे काम किया है, and he's always there for the batters. And yes, there's no doubt about it. A lot of credit goes to DK, how we have batted as a batting unit. First, how I started, obviously, at the end of the day, एक चीज़ आपको पता है कि you have to score the target what is in front of you. So मेरा plan वही था starting में कि I want to have that intent as a batter that I'll play cricketing shot and if it is there I'll look to capitalize. And वही intent था कि I want to play cricketing shot. I want to keep that intent. I don't want to go एकदम defensive mindset. And that was the whole game plan initially. And then I picked my areas where I wanted to hit, and that's how I built it. Obviously later on cramps was very, very painful. I mean, it started from calf, went hamstring, glutes, and both the legs I was cramping. But again, I was very clear that I'm not going to go out. I'll fight through that pain and I'll make sure that whatever I can contribute for the team, I'll do it. Plus, this was very, very, very crucial game for us. Especially how this is fag end of the tournament, right? Every game matters. So it was very clear that I'll fight it through that pain and make sure that whatever and whichever way I can contribute, I'll contribute in that. But I mean, sir, share willpower, I'll say. Again, if you see over a period of time how I've played my cricket, I've always played, that of not giving up, and I always cherish those tough situations. So it was sheer willpower and the courage that I didn't want it to give up, and that's not me as a person as well. Fast bowling, फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट बॉलिंग डिफ़िकल्ट था क्योंकि एक ही एरिया से अनइवन बाउंस हो रहा था, कुछ बॉल ऊपर चढ़ रहे थे, कुछ बॉल नीचे रह रहे थे. सो थोड़ा चैलेंजिंग था फास्ट बॉलिंग. स्पिनर भी, स्पिनर्स अगर ये विकेट पे जब भी अच्छे एरियाज़ में बॉलिंग डालते थे तो बहुत डिफ़िकल्ट था लाइन अप करना भी. तो वही था कि हाउ कैन यू गेट इन टू अ गुड पोजिशन, एंड आपको ऐसे विकेट पे जब होता है यू हैव टू पिक योर एरियाज़ कि यहाँ पे आएगा तो मैं ये शॉट खेलूँगा, एंड यू हैव टू स्लाइटली प्लान इन अ वे कि आप हाउ कैन यू बी वन स्टेप अहेड. जैसे कि मैंने एज अ बॉलर हमेशा बात किया कि मेरा हमेशा माइंडसेट रहता है मैं एक स्टेप कैसे अहेड रहूँ. सेम थॉट प्रोसेस अप्लाइज एज अ बैट्समैन एज वेल. सो वही प्लान था, एंड या लकीली इट वर्क फॉर अस. ऑब्वियसली एज अ बैट्समैन मैंने हमेशा प्रिपेयर किया है क्योंकि मेरा अगर आप ओवरऑल बैटिंग ऑर्डर भी देखो, आई डोंट हैव अ फिक्स बैटिंग नंबर, राइट. मैंने मेरे करियर में 3 से लेके 8 तक खेला है.
तो कभी कभी ऑब्वियसली चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि कभी कभी आपको मोमेंटम चाहिए, बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आप 3-4 गेम में बैटिंग ही नहीं किए हो एंड देन सडनली 5th गेम में आपका बैटिंग आता है. तो बट आई फील लाइक टीम हैज़ ट्रस्टेड मी के केपी कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग विच इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन. और मेरा सिंपल माइंडसेट रहता है कि जब भी बैटिंग आता है तब मैं जाता हूँ एंड हमेशा मैंने वही चीज़ किया है कि व्हाट इज़ द सिचुएशन और टीम को क्या ज़रूरत है इस टाइम पे. तो मैं ऑब्वियसली मेरा पर्सनल माइलस्टोन पे कभी मैंने फोकस नहीं किया है. तो मैं हमेशा वही कोशिश करता हूँ कि अभी टीम की सिचुएशन ये है, क्या सिचुएशन में कैसे मैं अप्रोच करूँ जो कि मुझे ईजी लगता है और जितना टफ सिचुएशन होता है आई डोंट नो, आई समवेयर एन्जॉय इट. First of all, sir, I mean, he's one of the best bowler India has ever produced, right? तीनों फॉर्मेट इतने साल से वो खेले. IPL में मतलब 200 गेम खेलना और 7-7.5 के इकोनॉमी में डालना, और ऐसा नहीं है कि वो बीच वाले ओवर में बॉलिंग डालते, वो पावर प्ले में डालते जो कि बहुत कठिन है, और वो डेथ ओवर में डालते जो उससे भी कठिन है. और जिस तरीके से उन्होंने कंसिस्टेंटली ईयर बाय ईयर ही कम साइलेंटली डज हिज जॉब, गोज अवे. सो ही इज़ अ चैम्पियन बॉलर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. एंड 6 जो मारा, मतलब दैट वाज अमेजिंग शॉट आई गेस. मैं बोलूँगा पूरे मैच में दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट शॉट. और स्पेशली जो सिचुएशन था, 3 बॉल में 8 रन चाहिए थे और जो शॉट मारो ओवर कवर, आई मीन बैट्समैन के लिए भी टफ है, और स्पेशली ये विकेट पे वो शॉट खेलना, आई मीन दैट लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू हिम. सो या लकीली बहुत अच्छा है हम लोग के लिए कि ऐसी गेम कभी कभी बहुत हेल्प करती है एज अ टीम टू have that belief, have that bonding obviously in a way. So yeah, कोशिश यही रहेगी कि यहाँ से हम कैसे और बिल्ड करें. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, विराट कोहली इज़ अ चैम्पियन प्लेयर. मतलब अगर वो 2 गेम में रन नहीं करते तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ क्योंकि अब पता है कि अब विराट कोहली आएगा वापस. सो वो बहुत हंगर है विराट कोहली में. ही इज़ डिफरेंट बीस्ट, राइट? तो विराट कोहली का कभी टेंशन नहीं रहता. वो ही इज़ व्हाट ही इज़, सबको पता है. तो या विराट कोहली का बिल्कुल टेंशन नहीं है सर, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यहाँ से विराट कोहली विल डू अगेन विराट कोहली थिंग. सो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. और सेकंड क्वेश्चन, प्लेइंग इन रायपुर बहुत अच्छा लगा. जिस तरीके से सपोर्ट था हम लोग को, हालांकि मेरा पहली बार है रायपुर में. यहाँ का कल्चर, यहाँ का सब कुछ, हम जब आए तब बहुत ही प्यारा लगा. शहर बहुत प्यारे, लोग बहुत प्यारे हैं यहाँ पे, बहुत स्वीट है. और जिस तरीके से हमको सपोर्ट मिला, आई होप यहाँ से हम सेकंड गेम खेले तो वो सपोर्ट दिखेगा, और यहाँ से हम जब जाएंगे तब भी रायपुर का होम टीम हमेशा RCB रहेगा, वैसा कोशिश प्रे करेंगे हम. आई मीन यस, लास्ट ईयर सिमिलर सिचुएशन था, 25 और 3 थे और मेरे को बैटिंग में गया था. दोनों सिचुएशन सेम थे. ऑब्वियसली वो गेम में मेरे सामने एक गोट खड़ा था, विराट कोहली. तो जब विराट कोहली सामने रहता है तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है. वो जो एनर्जी लाते ग्राउंड पे, जो तरीके से उनका जो हो रहा है, विच ऑलवेज हेल्प्स यू. बट वो भी बहुत काफ़ी टफ विकेट और सिचुएशन था. बट ये थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंटली विकेट गंवा रहे थे, एंड देन थोड़ा ज़्यादा प्रेशर था, और जो टाइमिंग, हम लोग 11वां मैच खेल रहे, बहुत क्रूशल था हम लोग के लिए मैच जीतना. सो यस, ये आई मीन वो भी स्पेशल था और ये भी स्पेशल है. और जब भी कुछ भी चीज़ आप कंट्रीब्यूट करते हो विनिंग में तो वो स्पेशल ही होता है सर. बिल्कुल सर, मैं पहले भी बोला हूँ, आज जब मैं छोटा था 6 या 7 साल का, तब सबसे पहला ड्रीम वही था, देश के लिए खेलना है, और अभी भी उसमें कोई चेंज नहीं है. अगेन माई 100% गोल इज़ टू प्ले फॉर द कंट्री. अभी नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली वर्ल्ड कप भी आ रहा है 2027. So fingers crossed, and again I want to keep doing well, and let's hope that I get that opportunity, and that will be something which will be very pretty special and amazing for me and my family as well. So yeah, again I want to keep doing what is in my hand, जो कि जाके मैच खेलना है, अच्छा प्रदर्शन देना है, और fingers crossed. I mean, I have always obviously I hate losing, but I am a very graceful loser. I'll say it. I love winning, but if I lose also, I have that grace to accept the fact, and how can I still get better, and how can I look forward to it.